کہانی کی شروعات 5000 سال پہلے دکھاتے ہوئے ہوتی ہے، جہاں پہ ہم ایک ظالم راجا کو حکومت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب یہ شہر آزاد ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس ظالم راجا نے یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ یہ راجا یہاں کے سبھی لوگوں سے زمین کی کھدوائی کروا رہا ہوتا ہے۔ اصل میں اس کو ایک ایسے میٹیریل کی تلاش تھی، ایک ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کو جادوئی طاقتیں دے سکتی تھی، اور اس وجہ سے یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا اور اس شہر پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی حکومت کر سکتا تھا۔ بیسیکلی اس میٹیریل کا نام ایٹرنیم ہے، جس کی مدد سے یہ ایک ایسا تاج بنا لے گا جس سے یہ اپنے اندر سپر ہیرو والی پاورز کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ معمول کے مطابق مزدور کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران ایک مزدور کو وہ ایٹرنیم پتھر مل جاتا ہے، جس کو وہ ظالم راجا حاصل کر لیتا ہے اور بہت جلد ہی اپنا وہ تاج بھی بنا لیتا ہے، جس کو پہننے سے اسے بہت سی طاقتیں ملنے والی ہیں۔ اسی بیچ میں ہم ایک چھوٹے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس ظالم راجا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ گاؤں والوں کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں اس ظلم سے بچنا چاہیے، ہمیں اس کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، لیکن جب ظالم راجا کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، تو وہ اسے مارنے کا حکم دے دیتا ہے، اور جیسے ہی اس کو مارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ بہت سے دیوتا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 6 گاڈز یا دیوتا اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمت کی، ہمیں بہت اچھا لگا، اس لیے ہم تمہیں ایک ایسی پاور دینے جا رہے ہیں جس سے تم ایک لفظ شزام بولو گے تو تمہارے اندر ہم سب کی پاورز آ جائیں گی اور تم اتنے طاقتور بن جاؤ گے کہ تم آرام سے اس ظالم راجا کو ہرا سکتے ہو۔ یہ چھوٹا لڑکا کرتا بھی ایسے ہے، وہ شزام بولتا ہے اور بہت زیادہ پاورفل بن جاتا ہے، اور فوراً ہی وہ اس راجا کے محل میں آ جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنا شیطانی تاج پہن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی پاورز آ جائیں۔ لیکن یہ چھوٹا لڑکا جو شزام بولنے کے بعد اب بہت پاورفل بن چکا ہے، وہ وہاں آ کے تباہی مچا دیتا ہے اور سب کو مارنے لگتا ہے۔ یہ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ ظالم راجا کے ساتھ ساتھ وہاں کے پورے شہر کو ہی تباہ کر ڈالتا ہے، اور یہیں سے کہانی جاتی ہے 5000 سال بعد، اور ہم پریزنٹ کا ٹائم دیکھتے ہیں۔ ابھی کے ٹائم پہ بھی ہمیں وہی شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک گینگ نے پورے طریقے سے اس شہر پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، پوری طرح سے اس شہر کو کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اصل میں اس گینگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس تاج کو تلاش کرنا، یعنی کہ یہ اسی کراؤن، اسی تاج کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو آج سے 5000 سال پہلے اس ظالم راجا نے بنایا تھا۔ وہ خود تو مارا گیا تھا، لیکن اس کا تاج ابھی بھی کہیں نہ کہیں اسی شہر میں ہی دفن ہے۔ اب ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایڈریانا ہے، وہ بھی اسی تاج کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ کافی کوششوں کے بعد اس کو وہ تاج مل بھی جاتا ہے۔ ایڈریانا اور اس کے ساتھی اسی بات کو لے کے خوش ہو ہی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسی کا ایک ساتھی جس کا نام اسماعیل ہے، وہ اسی گینگ کے ساتھ ملا ہوا ہے جس نے پورے شہر پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ تبھی اسماعیل اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک ساتھی کو مار دیتا ہے اور اپنے گینگ کے دوسرے لوگوں کو بھی اسی غار میں بلا لیتا ہے۔ سب لوگ اس کی طرف گن پوائنٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایڈریانا ہمیں تم وہ تاج دے دو۔ تبھی یہ لڑکی نیچے دیکھتی ہے اور وہاں پہ کچھ ورڈز لکھے ہوتے ہیں۔ جب یہ اسے پڑھتی ہے تو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے شزام۔ یہ لفظ بولتے ہی وہاں پہ بلیک ایڈم آ جاتا ہے اور وہاں پہ آئے ہوئے سب گنڈوں کو مارنے لگتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں بچ پاتا۔ جبکہ رہی بات اسماعیل کی، جو گنڈوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ وہاں پہ مرنے کا ناٹک کرتا ہے، اس لیے اس کی جان یہاں پہ بچ جاتی ہے۔ کیونکہ ایڈریانا نے بلیک ایڈم کو زندہ کیا ہوتا ہے، دوبارہ سے جگایا ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ ابھی بلیک ایڈم وہیں پر ہوتا ہے کہ گینگ کے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں اور اس پر ایک اسپیشل ویپن سے اٹیک کرتے ہیں۔ یہ ویپن اسی ایٹرنیم میٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ تاج بھی بنا تھا، اور جیسے ہی یہ میزائل بلیک ایڈم کو لگتا ہے تو اسے واقعی درد محسوس ہوتی ہے۔ بلیک ایڈم اس مارنے والے گنڈے کی تو جان لے لیتا ہے، لیکن اس راکٹ یا اس چھوٹے سے میزائل کے لگنے کی وجہ سے خود بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ ایٹرنیم ایسا میٹیریل ہے جو بلیک ایڈم کی کمزوری ہے، اور اسی میٹیریل سے بلیک ایڈم کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے ایڈریانا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بلیک ایڈم کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ جیسے ہی بلیک ایڈم کو ہوش آتا ہے تو وہ یہاں پہ ایڈریانا کے بیٹے سے ملتا ہے۔ یہ بچہ بلیک ایڈم کو کہتا ہے کہ آپ 5000 سال سے اس غار کے اندر بند تھے، اب کیونکہ ہمارا شہر غلامی بسر کر رہا ہے، وہ گینگ ہمیں جینے نہیں دے رہا، تو آپ ہمارے لیے ایک مسیحا بن کے آئے ہو، آپ ہی ہمارے شہر کو اس گینگ سے بچاؤ گے۔ بلیک ایڈم کو یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے یہ میرا شہر ہوا کرتا تھا، اب یہاں پہ سب کچھ بدل چکا ہے، تو اس شہر کو بچانے کے لیے میں رسپانسبل نہیں ہوں، مجھے اس شہر اور یہاں کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ بات کہتے ہی وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے اور شہر میں پھرنے لگتا ہے اور شہر کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک فیمیل لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا کام اس دنیا میں آنے والے سپر ہیرو اور سپر ویلنز کو روکنا ہوتا ہے، دنیا میں ایسے حالات رکھنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کوئی مشکل نہ آئے اور ہماری زمین کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ وہ یہاں پہ ایک سپر ہیرو ہاک مین سے بات کر رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ بلیک ایڈم اب واپس آ چکا ہے اور اسے اگر روکا نہ گیا وہ پہلے کی طرح اس بار بھی بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے، اور وہ اگر پاگل ہو گیا
या वो गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। हॉकमैन इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरो शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम्स वहाँ पे उनको बचाता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है और बचे हुए कुछ लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है। अभी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पे आ जाती है और ये सब मिलके ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। ये जस्टिस सोसाइटी की टीम जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है, वो एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे, तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया, जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं जिसको तुम समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और बिल आखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके और इनकी आपस की लड़ाई आपस में खत्म हो जाए। तभी दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रियाना का साथी था, वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहाँ से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठा के अपने साथ ही ले जाता है। यहाँ काफी चालाकी से इसका बेटा अपनी मदर यानी एड्रियाना को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। सुन के ये काफी परेशान हो जाती है, इसलिए ये जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है, मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मार के पूछने पे उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ उसके बेटे को एक खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पे गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पे इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। तो ये परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्चे पे गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज स्पीड से उड़ता हुआ उसके आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और यहाँ पे इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से जला के मुकम्मल तरीके से खत्म कर डालता है। यहाँ पे ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। और जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। हमें इतने बुरे तरीके से मारा गया कि शायद कुछ जानवरों पे भी ऐसा सलूक नहीं करता। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी, बहुत सी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पे हमला कर दिया। वहाँ पे मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स वो शक्तियां मेरे काबू में नहीं रही, मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका। और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए तबाह हो गया। मेरा ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी और वो शक्ति अब मेरे पास है, वो बहुत नाराज हो चुके थे कि मैंने अपनी पावर का मिस यूज किया है, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा। इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा और मैं कई हजार साल तक उस केव उस गार के अंदर बंद रहा। जब एड्रियाना ने आके नाम लिया तो मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पे ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है, बहुत से लोग मारे गए।
वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम का वर्ड बोलता है, जिससे वो वापस से अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास इस वक्त सुपर पावर्स नहीं है। और जब तक ये दोबारा शज़ैम नहीं बोलेगा तब तक ये वापस से ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए ये इनसे रिक्वेस्ट भी करता है, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से ये वर्ड बोल ही ना सकूं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ये बोल ही ना पाए। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ गया है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मारे ताकि वो मर के हेल में आ जाए, यानी कि जहन्नुम में आ जाए, और वो हेल के डीमन से यहाँ पे मिल सके जिनसे वो पावर हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि मैं जैसे ही एड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आके उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा, और उसी वक्त ताज भी उसके हाथ में ही था। ये सब बातें ये शुरू से जानता था और सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ हेल के डीमंस इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते। पहले जैसा इंसान नहीं था, ये सबाक बन चुका होता है। इन पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए इसके सामने आते हैं। यहाँ पे काफी देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सबाक क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये सब मिल के भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। इसी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं, मुख्तलिफ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। और बहुत जल्द ये सब समझ जाते हैं कि सबाक को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं। उनको बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और ये लोग यहीं से उसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधा शज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम्स की पावर मिल जाती है और बगैर वक्त ज़ाया किए सबाक के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फेट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। हॉकमैन भी काफी ज्यादा सबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है कि उसी वक्त वहाँ पे ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाक की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो सबाक को हरा सकता है। और कुछ ही देर के बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़ के उसके 2 हिस्से कर डालता है और उसको मुकम्मल तरीके से फाड़ कर आखिरकार सबाक की जान ले लेता है। इसी वजह से सबाक की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके। वो यहाँ पे ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से ना निकलना। तुम इस शहर के लोगों के मसीहा बनो, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो, मुझे उसे परवाह नहीं है, लेकिन अपने इस शहर से तुमने नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ब्लैक एडम बैठा उसको देखता है और कहता है कि मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता, और उसका जब भी कुछ भी करने को दिल करेगा वो अपनी ही मर्जी करेगा। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। और ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन, और वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमें शायद बैठ के बात करनी चाहिए। और यहाँ पे सुपरमैन के ये कहते ही इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।